Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. In last sessions we have discussed about entrepreneurship, definition of entrepreneur, their basic traits, and apart from that we have discussed a story of women empowerment, that is a story of Little Papad. So success in entrepreneurship isn't just about your idea or your money. Plenty of people have interesting ideas or a lot of cash to throw around, and they have never quite managed to find success in their ventures. If you want to be an entrepreneur, take a step back and evaluate whether you have or not these following characteristics. And remember, if you don't have these traits now, you can develop them down the road to improve and enhance your success. So first is self-motivation. One of the most important traits of entrepreneurs is self-motivation. When you want to succeed, you need to be able to push yourself. You aren't answerable to anyone else as an entrepreneur. And that sometimes means that isn't hard to get moving without anyone to make you. You need to be dedicated to your plan and keep moving forward even you aren't receiving an immediate play check. So self-motivation is a driving force for successful entrepreneur. जब तक आप खुद से मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. यही एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो किसी भी एम्प्लॉय को सक्सेसफुल बनाता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है, राइट? तो ये बेसिक है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑफर. एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो व्हाट यू ऑफर एंड हाउ it fits into the market. Whether it's product or service, you need to know whether you fit in. That means you need to know when it's time to tweak things a little bit. This also includes knowing whether you are high end, middle end of the road, or at the bargaining position. Being able to position yourself and then adjust as needed in an important part of entrepreneurship. बेसिक चीज़ ये है कि आपको खुद का पता होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो मार्केट के लिए, और वो जो चीज़ है मार्केट में कब फिट बैठेगी, कब ट्विक करेगी, राइट? और उसके अलावा कि आप कहाँ पे हो, आप रोड के किनारे हो, रोड के बीच हो, या फिर साइड लाइन में हो, आपको कितनी दूरी तय करनी है, कितना आगे बढ़ना है. ये तभी हो पाएगा जब आप एनालाइज करोगे, जब आपको पता होगा कि what you offer. Then take risks. Successful entrepreneurs know that sometimes it's important to take risk. Playing it safe almost never leads to successful business owner. It's not about taking just any risk, though understanding the calculated risks that are more likely to pay off it. An important part of being entrepreneur. You will need to be willing to take few risks to succeed. ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्क ले लिए. वो रिस्क जो होना चाहिए वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, वो सिचुएशन के साथ मैच होना चाहिए. आप कौन सा काम कर रहे हो, उसमें कौन सा रिस्क लेना है. कभी कभी आप वो रिस्क ले लेते हो जिसमें आपकी गारंटी है कि आप 100% फेल करोगे. तो वैसे रिस्क नहीं लेना है जहाँ पे कहीं गारंटी ही नहीं है सक्सेस की. आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें रिस्क तो है पर ज़्यादा चांसेस है मेरे सक्सेसफुल होने के, बिल्कुल थोड़ा सा चांस है फेलियर होने का. यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स. देन फोर्थ इज नो हाउ टू नेटवर्क. नोइंग हाउ टू नेटवर्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. समटाइम्स who you know is an important part of success. Being able to connect with others and recognize partnership opportunities can take you a long way as a business owner. Figure out where to go for networking opportunities and make it point to learn how to be effective. कहीं भी नेटवर्क बनाने से नहीं होता है कि जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं आप उनसे खूब गॉसिप कर रहे हो और पूरे गैदर हो नेटवर्क बना रहे हो, इसको कॉल करे उसको कॉल करे. नो, आपको जानना है कि
कौन आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कहाँ आपको जाने से बिजनेस मिलेगा. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको किन लोगों से नेटवर्किंग करनी है, कहाँ आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और उसको आपको इफेक्टिवली यूज करना है. बेसिक मनी मैनेजमेंट स्किल एंड नॉलेज, ये 5th पॉइंट है जो कि ट्रेट है एंटरप्रेन्योरशिप बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का. वी ऑफन थिंक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज अ बिग पिक्चर, पीपल हु डोंट वरी सो मच अबाउट मैनेजिंग द डे एंड डे टू डे लाइफ. एंड इट्स ट्रू दैट यू माइट have an account or other team members to help you to manage the business. However, if you want to be successful, you should still have basic money management skill and knowledge. Understand how money works so that you know where you spend and so that you run your own business on sound principles. आप कुछ basic principles बनाओ और उसके ऊपर अपने business को चलाओ. मे बी आपके पास, आप बहुत रिच हो, आप किसी को हायर कर सकते हो, पर किसी के ऊपर आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते. यू हैव नो द बेसिक थिंग्स. आपको बिजनेस करना आना चाहिए, आपको कहाँ पैसा स्पेंड करना है वो आना चाहिए, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको सारे तरह का मैनेजमेंट आना चाहिए. ये बेसिक स्किल है. अगर नहीं है तो आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इसको एनहांस कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? इसके ऊपर काम करके, प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस्ड के एडवाइस के थ्रू आप अपना जो बेसिक मनी मैनेजमेंट स्किल है या फिर अदर मैनेजमेंट स्किल है, आप उसको एनहांस कर सकते हो. आप अपने नॉलेज को बढ़ा करके उसको एनहांस कर सकते हो. राइट. एंड सक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी. टू सर्टेन डिग्री यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. आप प्लान्स बनाते हो, सोचते हो कि मेरा प्लान बन गया, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हो जाएगा, आई मीन टू से, पर आप थोड़ी सी गुंजाइश अपने बिजनेस को दे दो कि वो फेल भी हो सकता है, कहीं पे आपको ठोकर भी लग सकती है, कहीं पे आपको लॉस भी हो सकता है. तो बी फ्लेक्सिबल इन योर प्लान्स. एज एन एंटरप्रेन्योर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप, ये नहीं है कि आपको उसमें 100% सक्सेस मिल ही जाएगा. आपको उसमें फेलियर का भी फेस करना पड़ सकता है. सो विलिंग टू चेंज एज नीडेड. आप कुछ रूल्स बनाते हो, आप सोचते हो कि एम्प्लॉयज़ आएंगे और 100% देंगे, बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम. आप प्लान करो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में खुशी आएंगे, पूरे साल मज़े से काम करेंगे, मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश रखो भी कि हो सकता है कि उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन में मन ना लगे, उनको आपकी पॉलिसीज़ अच्छी ना लगे, वो आपसे सेटिस्फाइड, अपने आप से सब लोग खुश होते हैं. मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, आई मीन नॉलेज वाइज नहीं, नॉलेज वाइज तो नहीं लगता है कि फिट हूँ, उसमें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट अदरवाइज लगता है कि मैं दूसरे के लिए जो कर रही हूँ वो बहुत कर रही हूँ, अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, मैं बहुत पॉलिश्ड हूँ और अपने बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ डेली बेसिस पे. पर ये मेरा थॉट है, कोई भी इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है. मेरे कई सारे बैक बेंचर्स बैठे हुए हैं जो बोलेंगे कि अच्छा, ये तो मैं पर्टिकुलर कमेंट नहीं पास करूँगी, लेकिन हाँ, ऐसा सबके साथ होता है. जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ वो होता है कि उनको लगता है कि वो सुबह उठते हैं, किसी को हर्ट ना करें, अपना नॉर्मल लाइफ वो जी रहे हैं बिना किसी को दुखी किए हुए, लेकिन अनविलिंगली आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी को हर्ट हो, कोई ना कोई आपसे नाराज़ रहता है, कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, कुछ जानबूझ के भी करते हो, क्योंकि जब आप देखोगे कि यहाँ आपकी बेनिफिट है और यहाँ पे आपका लॉस है, तो बिल्कुल लॉस में ना चले जाओ, तो आपकी तो आप थोड़ा सा प्रायोरिटी अपने आप को देते हो. तो इट्स अ जनरल थिंग, ये नॉर्मल थिंग है. तो आप तो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हो, पर आपके एम्प्लॉयज़ आपको समझ नहीं रहे, तो आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो. So stay on top of your industry and be ready to adopt changes in processes and product as they are needed. आप
बदलने की कोशिश करो। अगर लोग कहते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश नहीं, आपको कुछ फीडबैक देते हैं, तो आप उस पर वर्क करो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कुछ फीडबैक दोगे और मैं बोलूँगी नहीं नहीं मेरा तो तरीका बिल्कुल सही है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगी। नो, आई हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से फीडबैक मांगती हूँ कि आप लोग मेरे को फीडबैक दो, ताकि मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, मैं अपने ऊपर और काम कर सकूँ, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर करूँ। सो दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू वांट टू बी एबल फाइंड यूनिक एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इश्यूज, राइट। सेवेंथ है पैशन। फाइनली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट, दे फील deeply about their product, service or mission. Passion is what will help you to find motivation when you are discouraged. लोग कहते कि अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार लेक्चर देती है, ये तो इसको पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी आप में करेज हो कि अरे हाँ, एक्सेप्ट करने का कि हाँ अभी तो मैं न्यू हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं आता पढ़ाने, उतनी कंटेंट मेरे अंदर नहीं है, मुझे और इन्हांस करना है। तो आपको जब से डिस्करेज करो तो भी पैशन हो कि अच्छा ये मेरे में कमी है, ओके आई नीड टू वर्क ऑन, राइट। ये होता है पैशन। it will drive your forward, it will drive you forward. Passion is a fuel for successful entrepreneurship. ये फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो तो आपकी वो स्पीडली चले, उसी तरीके से पैशन होना ज़रूरी है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ लूजिंग योर पैशन, दैट might be the clue that it's time to move on to something else that strokes your passion. There are many serial entrepreneurs that create successful business, sell them, and then create something else. As you consider your characteristics, think about how better develop them to help you become a better entrepreneur. आप देखिए, समझिए कि आप में क्या है और क्या ड्रॉबैक्स रह गए हैं आपके अंदर। जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको लोगों से डिस्कस करना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, अपने थॉट लोगों के बीच रखना चाहिए, और आपको इतना पैशन होना चाहिए आप में कि आप कुछ भी कर जाओ, और आप में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो भी फीडबैक वो दे रहे हैं उसको जो भी डिस्करेज मिल रहा है आपको कोई लोग डिस्करेज कर रहे हैं तो उसको सहने की शक्ति कि हाँ मेरे में ये कमी है, उसको एक्सेप्ट करने का स्टैमिना रखो, और फिर उसके ऊपर काम करो कि अच्छा मेरे में ये है, मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा और मैं इस चीज़ को बिल्कुल निल कर दूँगा, ये इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दूँगा, मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा और मैं इसको इस नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये जो बेसिक ट्रेड्स है वो एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, एंटरप्रेन्योर्स के हैं। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून विथ मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे हैप्पी।